Welcome students to the next chemistry class, haloalkanes and haloarenes. This is first chapter of your NCERT part 2 and it is your chapter number 10. Now what is meaning of halogen? Halogen stand for fluorine, chlorine, bromine, iodine and astatine. Alkanes, all of you know, alkanes are saturated hydrocarbons. Hydrocarbons means compounds made up of carbon and hydrogen, and those hydrocarbons which have carbon-carbon single bond are called alkanes. Haloalkanes are formed when hydrogen atom of alkanes replaced by halogen atom. Haloarenes means when the hydrogen atom of aromatic ring replaced by halogen atom, the compounds so obtained are called haloarenes. In this lecture, we will discuss about the compounds obtained by the replacement of hydrogen of benzene ring by halogen atom. Now, classification of haloalkanes and haloarenes. Haloalkanes and haloarenes are classified on the basis of nature of carbon atom to which halogen atom attached. In the first category, there are those compounds in which halogen atom attached with sp3 hybridized carbon atom, and in the second category, there are compounds in which halogen atom attached with sp2 hybridized carbon atom. In the first category, there are three types of compounds: haloalkanes, allylic halides, and benzylic halides, which we will discuss one by one. And in the second category, there are two types of compound: vinylic halide and second aryl halides, which are also known as haloarenes. मीन्स ये टोटल जो 5 टाइप्स ऑफ के कंपाउंड्स हैं उसमें हमको मेनली जो पढ़ना है वो फर्स्ट कैटेगरी का फर्स्ट हैलोएल्केन्स एंड सेकंड कैटेगरी का सेकंड हैलोएरीन्स, उनके बारे में पढ़ना है. बाकी जो है एलाइलिक, बेंजाइलिक एंड विनाइलिक वो जस्ट हमको पता होना चाहिए कि ये हैलाइड्स क्या होते हैं. Then on the basis of number of halogen atom, haloalkanes are divided into different types like monohaloalkanes if there is one halogen atom, dihaloalkanes if there is two halogen atom, trihaloalkanes if there is three halogen atom. Similarly, haloarenes are also divided into different types: monohaloalkanes if there is only one halogen atom attached with benzene ring, dihaloarenes if two halogen atom attached with benzene ring. Benzene ring means aromatic ring. It may be नैप्थिन रिंग, लेकिन हम यहाँ पर बेंजीन रिंग से ही पढ़ेंगे. ट्राई हेलोएरीन्स इफ 3 halogen atom attached with the aromatic ring. Now I am going to start first. Monohaloalkanes means monohaloalkanes means when one hydrogen atom of alkane replaced by one halogen atom. Such type of compounds are called monohaloalkanes. Now there are three types of monohaloalkanes on the basis of nature of carbon atom to which halogen atom attached. First, primary haloalkane when the halogen atom attached with primary carbon atom. ऐसे हैलोएल्केन्स, मोनोहैलोएल्केन्स जिसमें हालोजन एटम प्राइमरी कार्बन से अटैच्ड होता है उसे हम प्राइमरी हैलोएल्केन्स कहते हैं. प्राइमरी कार्बन का मीनिंग जो फर्दर वन कार्बन एटम से अटैच्ड होता है. देन सेकेंड टाइप ऑफ मोनोहैलोएल्केन इज सेकेंडरी हैलोएल्केन when the halogen atom attached with the secondary carbon atom. Secondary carbon atom means the carbon atom which is further attached to two other carbon atom, or you can say two other alkyl groups. Then such type of haloalkanes are called secondary haloalkanes. Then third, tertiary haloalkanes. Third type of monohaloalkane is tertiary haloalkane if the halogen atom attached with tertiary carbon atom. Tertiary carbon atom means carbon atom carrying halogen further attached with 3 carbon atom, or you can say 3 alkyl group. जिस कार्बन से हैलोजन अटैच्ड है वो 3 कार्बन से, या आप कह सकते हो कि 3 अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड होता है, वो टर्शरी मोनोहैलोएल्केन होता है. यहाँ पर आपको स्लाइड पे हैलोजिनोएल्केन लिखा है, डोंट बी कन्फ्यूज्ड. इट मीन्स मोनोहैलोएल्केन को हैलोजिनोएल्केन्स भी कहा जा रहा है. Now there are some examples of primary, secondary and tertiary haloalkanes. First, primary haloalkanes. 3 examples are given. First is ethyl bromide. Total number of carbon is 2, therefore it is derived from ethane. Ethyl bromide, bromine atom attached with primary carbon, hence it is an example of primary haloalkane. Second, n-propyl chloride, normal propyl chloride. टोटल 3 कार्बन है और क्लोरीन आटम टर्शरी कार्बन से अटैच
टर्मिनल कार्बन से अटैच्ड है, देयरफॉर इट इज नॉर्मल प्रोपाइल। प्रोपाइल रेडिकल दो होता है, नॉर्मल प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल। किनारे का कार्बन का एच हटता है तो उसे हम एन प्रोपाइल बोलते हैं, इसलिए इसका कॉमन नेम नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड होगा। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी हेलो एल्केन बिकॉज क्लोरीन एटम अटैच्ड विथ प्राइमरी कार्बन एटम। थर्ड एग्जाम्पल पे टोटल 4 कार्बन एटम है, इसलिए ये ब्यूटाइल रेडिकल है। इस ब्यूटाइल रेडिकल को हम आइसोब्यूटाइल कहते हैं। इसमें भी आयोडीन एटम अटैच्ड है जिस कार्बन से, वो उसका नेचर प्राइमरी है क्योंकि वो फर्दर एक कार्बन से अटैच्ड है। Therefore, it is also example of primary haloalkane and its name is isobutyl iodide. And bottom पे आपको एक स्ट्रक्चर बना हुआ है that is normal propyl bromide है, बीच वाले में क्लोरीन था, यहाँ पर ब्रोमीन है इसलिए इसका नाम एन प्रोपाइल ब्रोमाइड है। ऊपर पे वो एन प्रोपाइल क्लोराइड था, ये एन प्रोपाइल ब्रोमाइड है। ये भी एक एग्जाम्पल है प्राइमरी हेलोएल्केन का। यहाँ पर पूरे बॉन्ड बना के इलाबोरेट करके स्ट्रक्चर बनाया गया है जिससे कि कार्बन की 4 वैलेंसी आपको क्लियरली समझ में आ जाए। नौ सेकेंडरी हेलोएल्केन्स के 2 एग्जाम्पल इस स्लाइड पे दिए हुए हैं। पहले एग्जाम्पल में विच इज़ आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, जब मिडिल कार्बन का एच हटता है प्रोपेन का तो उस प्रोपाइल रेडिकल को आइसोप्रोपाइल कहा जाता है। दिस इज आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड क्योंकि ब्रोमीन एटम सेकेंडरी कार्बन से अटैच्ड है, देयरफॉर इट इज़ अ टाइप ऑफ सेकेंडरी हेलोएल्केन। दूसरे एग्जाम्पल पे टोटल 4 कार्बन एटम है, इट मीन्स इट इज़ अ ब्यूटाइल रेडिकल। और जिस कार्बन से क्लोरीन अटैच्ड है वो फर्दर 2 कार्बन से अटैच्ड है, देयरफॉर इट इज़ सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। और बॉटम पे आपको जो फर्स्ट है आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, जो लेफ्ट हैंड साइड पे उसी का इलाबोरेटेड स्ट्रक्चर बना हुआ है जिससे कि कार्बन की ऑल वैलेंसी आपको सेपरेटली शो हो जाए। Now tertiary haloalkanes, there are 2 example of tertiary haloalkanes. In the first example which is tertiary butyl bromide, क्योंकि टोटल 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटाइल है। जिस कार्बन से ब्रोमीन है इसलिए वो 3 कार्बन से अटैच्ड है इसलिए वो टर्शरी कार्बन है, इसलिए ये टर्शरी हेलोएल्केन का एग्जाम्पल है एंड इट्स नेम इज टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। सेकेंड एग्जाम्पल पे टोटल 5 कार्बन हैं इसलिए ये पेंटाइल रेडिकल है। और जिस कार्बन से क्लोरीन अटैच्ड है वो टर्शरी कार्बन है इसलिए टर्शरी पेंटाइल क्लोराइड है। एंड बॉटम पे आपको फर्स्ट एग्जाम्पल का इलाबोरेटेड स्ट्रक्चर शो किया गया है जिससे कि कार्बन की ऑल द 4 वैलेंसी कैसे सेटिस्फाइड है वो आपको क्लियर हो जाए। नाउ सेकेंड मोनो हेलोएल्केन्स के 3 टाइप्स आपको समझ में आ गए। अब हम पढ़ेंगे डाई हेलोएल्केन्स। When the 2 hydrogen atom of an alkane replaced by 2 halogen atom, the compounds so obtained are called dihaloalkanes. डाईहेलोएल्केन्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, लेकिन 2 एक्सट्रीम जो इम्पॉर्टेंट डाईहेलोएल्केन्स होते हैं वो जेमिनल डाईहेलाइड्स और विसिनल डाईहेलाइड्स होते हैं। जेमिनल डाईहेलाइड्स और दोज हेलाइड्स इन विच 2 हालोजन एटम्स आर बॉन्डेड टू द सेम कार्बन एटम। 2 हालोजन एटम जब सेम कार्बन एटम से अटैच्ड होंगे तब उसे हम जेमिनल डाईहेलाइड्स बोलते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, यदि उसका हम IUPAC नेमिंग करेंगे तो 2,2 डाइब्रोमोप्रोपेन होगा क्योंकि 3 कार्बन है और मिडिल कार्बन से 2 ब्रोमीन अटैच्ड है। इसमें दोनों ब्रोमीन एटम सेम कार्बन से अटैच्ड हैं, देयरफॉर इट इज़ अ टाइप ऑफ जेमिनल डाईहेलाइड्स। इन शॉर्ट दे आर नोन एज जेम डाईहेलाइड्स, इनको जेम डाईहेलाइड्स भी कहा जाता है। अनदर types of dihalides are vicinal dihalides. Vicinal dihalides when 2 halogen atoms are bonded to adjacent carbon atom. जब 2 halogen atom आजू बाजू के कार्बन एटम से अटैच्ड होते हैं तब हम उसे विसिनल डाइहेलाइड्स कहते हैं। इन शॉर्ट दे आर नोन एज विक डाइहेलाइड्स। इन दोनों टाइप्स ऑफ डाइहेलाइड्स के अलावा दूसरे भी डाइहेलाइड्स होते हैं, जैसे सपोज प्रोपेन के फर्स्ट एंड थर्ड कार्बन एटम से 2 हालोजन एटम अटैच्ड होंगे तो दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ डाईहेलोएल्केन, बट वो विसिनल और जेमिनल की कैटेगरी में नहीं आएगा। ट्राई हेलोएल्केन्स, if 3 hydrogen atom of an alkane replaced by 3 halogen atom, the compounds are called trihaloalkanes. The 2 important trihaloalkanes are chloroform and iodoform. CHCl3, methane first saturated hydrocarbon है CH4, यदि उसके 3 हाइड्रोजन को 3 क्लोरीन एटम से रिप्लेस करें तो CHCl3 फॉर्म होता है जिसको हम ट्राई क्लोरोमीथेन कहते हैं। इसमें 3 हाइड्रोजन एटम है, देयरफॉर इट इज़ अ ट्राई हेलोएल्केन एंड इट्स कॉमन नेम इज क्लोरोफॉर्म। दूसरा एग्जाम्पल है CHI3। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ कंपाउंड्स in which
हालोजन एटम अटैच्ड विथ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। पहला हमने पढ़ा हेलो एल्केन्स, अब हम सेकंड पढ़ रहे हैं एलाइलिक हैलाइड्स, जिसमें हालोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से अटैच्ड है। तो एलाइलिक हैलाइड्स आर दोज हैलाइड्स इन विच हालोजन एटम अटैच्ड विथ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दैट इज टू एन एलाइलिक कार्बन। डबल बॉन्डेड कार्बन के नेक्स्ट कार्बन को, जो कि सिंगल बॉन्डेड होता है, उसको हम एलाइलिक कार्बन कहते हैं। जब हैलोजन एटम एलाइलिक कार्बन से अटैच्ड होते हैं तो सच टाइप ऑफ हैलाइड्स को हम एलाइलिक हैलाइड्स कहते हैं। देयर आर टू एग्जाम्पल। इन एग्जाम्पल 1 in which halogen atom attached with carbon atom which is next to carbon carbon double bond, total 3 carbon atom is there। इसका IUPAC नेमिंग यदि हम करेंगे तो ये हो जाएगा 3 halo prop 1 ene, 3 halo prop 1 ene, and it is a type of allylic halide because halogen atom attached with allylic carbon। In another example, the halogen atom attached with allylic carbon which is next to carbon carbon double bond, and its IUPAC naming will be 3 halo cyclohex 1 ene। यदि हम इसकी नंबरिंग करें तो डबल बॉन्ड को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे और थर्ड पोजीशन पे हालोजन है एंड रिंग है, इसलिए इसको हम बोलेंगे 3 हेलो साइक्लोहेक्स, साइक्लो फॉर रिंग, हेक्स फॉर 6 कार्बन, 1 इन क्योंकि 1 के बाद डबल बॉन्ड है। इट इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ एलाइलिक हैलाइड बिकॉज हालोजन एटम अटैच्ड विथ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ halides in which halogen atom attached with sp3 hybridized carbon atom are benzylic halides। Benzylic halides are those halides in which halogen atom attached with sp3 hybridized carbon atom next to an aromatic ring। It may be benzene ring, may be naphthalene ring, but here we will discuss benzene ring। बेंजाइलिक हैलाइड्स में देखो बेंजीन रिंग के नेक्स्ट पे कार्बन एटम है, उससे हालोजन एटम अटैच्ड है। If the halogen atom attached with primary carbon next to benzene ring, such type of benzylic halides are called primary benzylic halide, जो कि आपको 1 डिग्री लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे स्लाइड पे, दैट इज प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड है। Similarly, if the halogen atom attached with secondary carbon next to aromatic ring, it is called secondary benzylic halide, and if the halogen atom attached with tertiary carbon next to aromatic ring, such type of benzylic halides are called tertiary Such type of benzylic halides are called tertiary benzylic halides। In the second example, here halogen atom, right hand side पे जो example है उसमें halogen atom जिस कार्बन से अटैच्ड है वो टर्शरी कार्बन है, एक साइड उस पर एरोमेटिक रिंग है और एक साइड R डैश और एक नेक्स्ट साइड R डबल डैश है, मीन्स 2 एल्काइल ग्रुप है और एक साइड एरोमेटिक रिंग है, मीन्स 3 कार्बन उस कार्बन से अटैच्ड है। देयरफॉर दिस इज टर्शरी बेंजाइलिक हैलाइड, क्योंकि जिस कार्बन से हालोजन अटैच्ड है वो बेंजीन रिंग का नेक्स्ट है, एरोमेटिक रिंग का नेक्स्ट है। इसी पे यदि हम एक R डैश या R डबल डैश की प्लेस पे H कर देंगे, हाइड्रोजन एटम कर देंगे, तो वो R डबल डैश की प्लेस पे हाइड्रोजन एटम कर देंगे, नीचे लिखा हुआ है, तो वो सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड हो जाएगा। तो अभी हमने फर्स्ट कैटेगरी के 3 टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स देखे, पहला हेलो एल्केन्स, सेकेंड एलाइलिक हैलाइड और थर्ड बेंजाइलिक हैलाइड। इन तीनों टाइप के हैलाइड्स में हाइड्रोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से अटैच्ड था। अब हम सेकेंड कैटेगरी के कंपाउंड की स्टडी करेंगे जिसमें हाइड्रोजन एटम sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से अटैच्ड है। इसका फर्स्ट टाइप है विनाइलिक हैलाइड्स। Vinylic halides are those halides in which halogen atom is bonded to sp2 hybridized carbon atom of a carbon-carbon double bond। ऐसे halides जिसमें halogen atom डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच्ड होता है उसको विनाइलिक हैलाइड कहते हैं। देयर आर 2 एग्जांपल्स। इन फर्स्ट एग्जांपल दिस इज हेलो इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 को इथीन बोलते हैं, उसमें एक H की प्लेस पे X आ गया तो हेलो इथीन। इट इज़ अ टाइप ऑफ विनाइलिक हैलाइड क्योंकि हैलोजन एटम डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए इस कंपाउंड का कॉमन नेम विनाइल हैलाइड है और इट इज़ अ टाइप ऑफ विनाइलिक हैलाइड है। ये पहला मेंबर है विनाइलिक हैलाइड का और इसका कॉमन नेम विनाइल हैलाइड है। यदि ये क्लोरीन होता तो ये विनाइल क्लोराइड हो जाता और इट इज़ अ टाइप ऑफ विनाइलिक हैलाइड। सेकेंड एग्जाम्पल, हाइड्रोजन एटम अटैच्ड विथ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, इट इज़ ऑल्सो अ विनाइलिक हैलाइड। ये भी एक विनाइलिक हैलाइड है। इसका IUPAC नेमिंग 1 हेलो साइक्लोहेक्स 1 इन होगा और इसके स्ट्रक्चर से क्लियर हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन एटम डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड है तो ये एक विनाइलिक हैलाइड है। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ हैलाइड्स इन विच हाइड्रोजन एटम अटैच्ड विथ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम आर एराइल हैलाइड्स विच आर ऑल्सो नोन एज हैलोएरीन्स।
पहले हम देखेंगे मोनो हेलोएरिन्स. मोनो हेलोएरिन्स मीन्स ओनली वन हैलोजन एटम अटैच्ड विद एरोमेटिक रिंग. यहाँ एरोमेटिक रिंग पे जिस कार्बन से हैलोजन अटैच्ड है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, देयरफॉर दे आर मोनोहेलोएरिन. ये मोनोहेलोएरिन का एग्जाम्पल है. पहला एग्जाम्पल जो लेफ्ट हैंड साइड पे वो हेलोएरिन या हेलोबेंजीन है. यदि एक्स के पे क्लोरीन एटम होगा मीन्स एक्स क्लोरीन एटम को रिप्रेजेंट करेगा तो वो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमोबेंजीन, आयोडीन होगा तो आयोडोबेंजीन होगा. इन अनदर एग्जाम्पल अलॉन्ग विथ हैलोजन वन group is also present. Now dihaloarenes. Dihaloarenes means with when the more than one hydrogen of aromatic ring replaced by halogen atom, they are called dihaloarenes. Dihaloarenes are divided into different types on the basis of their position with respect to one another. If the two halogen atom attached at 1,2 position with respect to one another, such type of compounds are called orthodihaloarene. जैसे पहला एग्जांपल है वो है ऑर्थोडाइक्लोरोबेंजीन, बट IUPAC नेमिंग में उसको कहते हैं 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन. इफ द टू ग्रुप्स आर प्रेजेंट एट 1,3 पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू वन अनदर, देन उसे हम कहते हैं मेटा फॉर्म. ये जो है ये होगा मेटा डाइक्लोरोबेंजीन सेकेंड वाला, जिसको आप 1,3-डाइक्लोरोबेंजीन भी कह सकते हैं. देन थर्ड जो है वो है पैरा पोजीशन पे 2 क्लोरीन एटम प्रेजेंट है. 1,4 पोजीशन को पैरा पोजीशन कहते हैं. दिस इज 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन. 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन इसी को आप पैरा डाइक्लोरोबेंजीन भी कह सकते हैं. तो ये आपके क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गए. अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे वो IUPAC नेमिंग. IUPAC नेमिंग ऑलरेडी आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि जब हम हेलो एल्कीन्स की नेमिंग करते हैं तो सबसे पहले हम लॉन्ग चेन को सेलेक्ट करेंगे. लॉन्ग चेन की सेलेक्ट करने के बाद हम सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन देंगे नंबरिंग करके, और सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन के को सुटेबल नंबर से इंडिकेट करेंगे वेदर दे आर एट पोजीशन 1, पोजीशन 2 और पोजीशन 3. एंड along with substituent if multiple bond present. In case of halogen, the first preference is given to multiple bond and then to halogen atom. There are some example of compounds IUPAC naming of some haloalkanes. Bromoethane, because of 2 carbon it is derived from ethane, bromoethane. Second, 2-chloropropane because chlorine atom is at second position. And then third, there is chain of 3 carbon atom and 2 substituent present at first iodo and at second methyl. Therefore this is 1-iodo 2-methyl propane. And some more examples are given at the bottom and they are named on the basis of IUPAC rule, which you already learnt in class 11th. Now here some example of haloalkanes. Their IUPAC and common naming both are given. Methyl chloride, IUPAC naming chloromethane. Ethyl bromide, IUPAC naming bromoethane. N-propyl iodide, why it is known as N-propyl iodide you already know, because propyl, there is 2 type of propyl. N-propyl if terminal carbon, hydrogen of terminal carbon removed by some group, and isopropyl when the hydrogen of middle carbon replaced by some group, then it is called isopropyl. So third one is N-propyl iodide and its IUPAC naming will be 1-iodopropane. And second is fourth one is isopropyl iodide and its IUPAC naming will be 2-iodopropane. And here some more examples are given and their common name along and IUPAC naming both are given and they are named on the basis of IUPAC rule. I hope all the points clear to all of you. That's all. This is the last topic of this lecture. We will discuss the other topic of this chapter in the next part of this chapter. We will discuss remaining topics of this chapter in the next part. Okay.